Hello everyone, I am Ujjwal Pandey, and on this channel from now onwards we will be studying about sociology, the very basics of sociology. We will start with the very basics of sociology, ki how sociology emerged as a subject, and then we will move on to various thinkers, various perspectives, various schools, basic concepts of sociology, research methodologies, and all different concepts which are there in UPSC optional syllabus or CUET PG syllabus or CUET UG syllabus, and also of NET we will cover in this. So very first syllabus or what we have to study in sociology is emergence of sociology. We all know that sociology is a very new subject, and its subject matter, it's a very new subject. It emerged in the late 19th century, मतलब 1830 के 1850 के बाद ये सब्जेक्ट बना था. So this is a very new subject and its discipline was also formed very later. तो क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, कौन कौन से वो थिंकर्स थे जिनकी वजह से सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, और उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है क्या, हम सोशोलॉजी को समझ कैसे सकते हैं. तो इस लेक्चर में हम ओवरऑल समझेंगे कि व्हाट इज़ द फाउंडेशन एंड की थिंकर्स which are there in the emergence of sociology. So if we see about the introduction, sociology as a discipline emerged in the early 19th century during the period of profound changes. Now if we have to see that what are these profound changes जो हम आगे भी देखेंगे, दीज चेंजेस वेर नॉट ओनली फिजिकल, या ये चेंजेस केवल सोसाइटी में नहीं हो रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस केवल दिख रहे थे. दीज चेंजेस वेर ऑल्सो मेंटल in the psychology. These changes were on the basis of psychology, on the basis of intellect, and especially we can trace it to the enlightenment period. जो enlightenment का पीरियड था हम उसमें भी इसको ट्रेस कर सकते हैं. enlightenment period, counter enlightenment period, जिसमें रीजनिंग की बात की गई है एंड सेवरल अदर चीज़ों की बात की गई है, वेयर साइंस वॉज एक्चुअली प्रिवेलिंग वेरी मच. तो क्या क्या चेंजेस थे जो हुए. दिस प्रेजेंटेशन आउटलाइन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. आज हम सोशोलॉजी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, इमरजेंस के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, कि किस तरीके से कौन कौन से वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ. सोशल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से सोशल थॉट्स थे जिनकी वजह से सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, और उसके रेलेवेंस के बारे में भी हम देखेंगे आज के टाइम में. सो इफ़ वी हैव टू लुक एट दी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो हमें ओवरऑल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये देखना है कि व्हाट वाज एनलाइटनमेंट एंड हाउ दिस एनलाइटनमेंट affects the emergence of sociology. Also the Renaissance period, how this Renaissance shaped the subject of sociology, and also we have to see the changes in structure of the sociology. And now when I am saying structure of the society, when I am saying about the structure of society, then we have to know that how a structure of society changes. भाई structure of society है तो structure of society कैसे change होता है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि what is society. तो today, not going on the basic concepts which is society, I'll tell you a very basic thing what is society. Society is nothing but the web of social relationships. Social relationships, और वी कैन से सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस हैं अलग अलग लोगों को. देयर इज़ रिलेशन एमंग इंडिविजुअल, देयर इज़ रिलेशन एमंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, देयर इज़ रिलेशन एमंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ कम्युनिटी. और इन सब के इंटरप्ले को जो स्टडी करता है उसको बोला जाता है सोशियोलॉजी. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको सोसाइटी एज अ कॉन्सेप्ट पता होगा कि व्हाट इज़ सोसाइटी ओवरऑल. सोसाइटी इज़ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एंड दिस डेफिनेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय मैकाइवर, R.M. मैकाइवर, who was originally a political scientist, then later turned to sociology. So let us see what is the rise of sociology rooted in the Enlightenment period, when the rational thought began to challenge the traditional belief
and now we have to see what was those traditional beliefs and what is reason and what are those things. When we talk about reasons, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा, there was a person called as René Descartes, and he said, I think, therefore I am. एगिटो कर्गोसम. तो इफ़ आई से दिस, तो उसने रेने डेकार्ट्स इसमें क्या समझाना चाहते थे? ही वॉज एन इनलाइटनमेंट पीरियड फिलोसोफर. उन्होंने बोला कि द वेरी बेसिक, द वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और वेरी एसेंस ऑफ एनी सोसाइटी इज़ रीजनिंग. भैया जब तक रीजनिंग नहीं होगी या साइंस नहीं होगा या रेशनलिटी नहीं आएगी, तब तक आप नहीं कह सकते दैट यू आर पार्ट ऑफ ए सिविलाइज सोसाइटी, बिकॉज सिविलाइज सोसाइटी ऑलवेज हैव अ रीज़न इन दैम. अब जब रीजनिंग होना शुरू हुआ तो देयर वॉज ए वेरी मच इम्पैक्ट ऑफ दिस रीजनिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ द चर्च. भैया चर्च इतनी बुरी तरीके से यूरोपियन सोसाइटी को ग्रैब किए हुए था कि एवरी पार्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल वॉज कनेक्टेड सम वॉट टू द चर्च, सम वॉट टू द गॉड. इवन ये भी कहा जाता था कि देयर इज़ अ फेज बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और अगर आप पैसा नहीं देंगे फॉर सम लेटर जो चर्च ग्रांट करेगा, तो आपके पूर्वजों को या आपके एंसेस्टर्स को स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो उसी बीच के फेज़ में फंसे रह जाएंगे. तो इस तरीके की अनरीजनिंग और इरेशनलिटी थी वहाँ पे. तो द रीजनिंग चैलेंज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ द चर्चेज एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, एंड देयर इमर्ज्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म. जब लिबरलिज्म आया तो लिबरलिज्म ऑफ थॉट आया, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इन डिफरेंट वे. What was it next thing? Next thing was the industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया. अब अगर मैं बताऊं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरीके से सोसाइटी को बदला था, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द वेरी स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द सोसाइटी. भैया कैसे स्ट्रक्चर या शेप ऑफ द सोसाइटी चेंज कर दिया? इसने इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म को ही चेंज कर दिया. जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं सच एज मैरिज, फैमिली, रिलीजन एंड सेवरल अदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया. इंडस्ट्रियलाइजेशन सो अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी लीडिंग टू द अर्बनाइजेशन एंड न्यू सोशल इश्यूज. अब बात ऐसी है कि फैमिलीज़ जब रूरल सेटअप से अर्बन सेटअप की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ तो चेंजेस होंगे ना, देयर वुड बी सम चेंजेस. अब क्या चेंजेस होंगे? उनके बहुत फंडामेंटल थिंकिंग में चेंज आएगी, वो अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे. सबसे बड़ी बात, रेशनलिटी की तरफ बढ़ेंगे. दूसरा, फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर से जॉइंट से न्यूक्लियर की तरफ चला जाएगा. अब जब ये चेंजेस होंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे. नए इश्यूज़ आएंगे, इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी विल बी देयर. भैया कि हाँ, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पॉवर्टी साइकिल में फंस जाएंगे. एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म विच इज़ कैपिटलिज्म एंड ऑल्सो द ऑपरेशन ऑफ पीपल. इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया एलीट थ्योरी, या फिर जो लोग अपने पावर को एक हाथ में रखते हैं. तो ये सब यहीं से निकल के आया था. एंड ऑल्सो दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द रीज़न, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट वॉज द रीज़न ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इतनी चीज़ें हो रही थी, इतनी सारे चेंजेस हो रही थे. अब इतने अगर चेंजेस होंगे तो देयर शुड बी समथिंग कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए कोई एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ तो होनी चाहिए. तो इस जो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ था, दैट पेव्ड द वे फॉर सोशियोलॉजी एज एकेडमिक डिसिप्लिन. जब फील हुआ कि इन सारे चेंजेस को स्टडी करने के लिए और ट्रेंड्स को पहचानने के लिए देयर शुड बी सम एकेडमिक डिसिप्लिन विच इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल स्टडीज़ एंड रेशनलिटी, तब एक नया एकेडमिक डिसिप्लिन आया जिसको सोशियोलॉजी बोला गया. एंड दिस टर्म वॉज इटसेल्फ पॉइंटेड बाय ऑगस्ट कॉम्ट, जो हम आगे देखेंगे. की इवेंट्स क्या क्या थे, विच वर द की इवेंट्स फ्रॉम द हिस्ट्री जिन्होंने ये सारी चीज़ें शेप की थी? द वेरी फर्स्ट की इवेंट वॉज फ्रेंच रिवोल्यूशन. दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज हैपेंड इन 1789, ये बात सबको पता है. एंड दिस चेंज द वेरी सिस्टम ऑफ द मोनार्की टू डेमोक्रेसी. इसी में मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लॉक, इन सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी. जैसे
स्पिरिट ऑफ लॉ, जॉन लॉक का टैबुला रासा, है ना, मॉन्टेस्क्यू का लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, तो इन सब ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सिस्टम को चेंज किया, जो अल्टीमेटली शेप कर दी है सोसाइटी को, क्योंकि गवर्नमेंट या कोई फॉर्म ऑफ अथॉरिटी ही तो एक सोसाइटी को चलाती है, कम्युनिटी को चलाती है। जब वो सब चेंज हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, तो एक नया सिस्टम एमर्ज हुआ अमंग द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक नया थॉट प्रोसेस जनरेट किया बहुत सारे लोगों में, उस यूरोप के बहुत सारे लोगों में एक नया थॉट प्रोसेस ही जनरेट किया कि हाँ भैया इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। सोशल अपीवल एंड क्वेश्चनिंग ऑफ द अथॉरिटी शुरू हुई, ट्रेडिशन को क्वेश्चन करना शुरू हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हुई थी, दोज यूनिवर्सिटीज़ जो कि पूरी तरीके से बेस्ड थी ऑन सोशल लाइफ, वो सोशल साइंसेज या सोशल लाइफ को पढ़ते थे। यहीं से जब ये स्टडी करना शुरू हुआ तो एक कॉन्सेप्ट आया, सेंट साइमन एक नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे उस टाइम के, उन्होंने कहा दैट देयर शुड बी सम डिसिप्लिन टू स्टडी सोसाइटी। एंड ये बोला किसने था? दिस वॉज सेड बाय सेंट साइमन एंड ऑगस्ट कॉम्ट वॉज हिज डिसिपल। ऑगस्ट कॉम्ट इनके शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे, एंड ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द नेमिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने ही नाम रखा था सोशियोलॉजी का। तो एज ए डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट आया सोशियोलॉजी वॉज बिकॉज ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट। एंड दिस सी इफ़ आई हैव टू टेल यू 19th सेंचुरी, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी लिखी थी, जिसने फॉर्मल बिगिनिंग की थी सोशियोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ इंक्वायरी एम्फसाइजिंग ऑन एम्पिरिकल रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड्स। अब इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? मैंने जो आगे पे बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रास्टिकली रीशेप्ड द सोसाइटी रिजल्टिंग इन रैपिड अर्बनाइजेशन, चेंजिंग इन सोशल स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएटेड न्यू क्लासेस। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट इटसेल्फ द न्यू क्लासेस, और जब न्यू क्लास आया तो भैया ये इंटरप्ले तो सोसाइटी में ही करेंगे ना, ये रहेंगे तो सोसाइटी में ही। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर वॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी, and highlighted these issues as poverty, social inequality and labor rights. Sociologists sought to understand these changes through empirical research, fostering the development and theories बहुत सारी आई जो डायनेमिक और implication of modern living को स्टडी कर सकें। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वॉज लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट, रेनेसा, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड विच वॉज accompanied by urbanization and different and change in the institution and their forms. Now अब बात करते हैं मेजर फिलोसोफर्स की। भाई मेजर फिलोसोफर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फिलोसोफर्स और यूरोपियन फिलोसोफर्स विच वे देयर एंड पेविंग द वे फॉर subjects such as sociology. If I may name some of the thinkers, so the very first thinker which has an influence on Auguste Comte, the father of sociology, was Condorcet. Second was Saint Simon. Third, Montesquieu. Sorry for the noise, guys. Montesquieu. Rousseau. René Descartes. And many more. John Locke. So these were thinkers which has a major impact on the mind of Auguste Comte. कैसे? Condorcet gave the 10 stages of scientific progress which developed the theory of 3 stages or law of 3 stages which was given by Auguste Comte. Saint Simon
gave the very essence which is called as physics of society. इन्होंने एक प्रपोज किया था देयर शुड बी ए सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स ऑफ सोसाइटी जो एम्पेरिकल और रेशनलिटी के लेवल पे सोसाइटी को स्टडी करेगा. मॉन्टेस्क्यू गेव देयर ओन थ्योरीज विच वॉज वेरी मच प्रेवलेंट इन द फ्रेंच सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी इन दैट टाइम. रूसो रेने डेकार्ट्स ने रेशनलिटी की बात की थी एंड जॉन लॉक गेव दी टैबुला रासा और क्लीन स्लेट कि भैया सोशलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो द वेरी फर्स्ट थिंकर और जिसे हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं इज ऑगस्ट कॉम्ट. नाउ इफ वी विल सी कंसिडर एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने जो अपनी पहली किताब लिखी थी वो थी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी एंड दिस बुक वॉज वेरी मच फेमस ऑल्सो. दिस बुक वॉज वेरी मच फेमस, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी. And this book was pretty famous because it dealt how to study a society in a very different way, or he was a thinker of positivist mindset. Now what is positivist mindset? He was a thinker of positivist mindset. He sought that study of the society या society की जो study है that should be in an empirical way. कैसी होनी चाहिए भैया? एम्पिरिकल होनी चाहिए और इट शुड बी बेस्ड ऑन मैथ्स और रीज़न. ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि गए लेम से स्टडी की, अपना माइंडसेट बनाया और दे दिया, मतलब मैंने कुछ भी बोल दिया एंड दैट इज़ दी थिंकिंग एंड दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशलिटी. देयर शुड बी सम मेथोडोलॉजी, देयर शुड बी सम पॉजिटिविज्म इन दैट एंड ऑल्सो ही वॉज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनलिस्ट इन हिज थॉट. कंसिडर एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. इन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच आई टोल्ड यू. ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स इन द स्टडिंग सोसाइटी. कॉम्स आइडियाज लेड द वेरी फाउंडेशन फॉर सोशियोलॉजी as discipline and influenced future thinker. And what were the future thinkers? Which were the future thinkers? The very first future thinker which is called as academic father of sociology is Auguste Comte. We will discuss them in detail later on in later lectures. Academic father of sociology. He wrote significant amount of books and he gave a very significant direction to this subject. Because of him only the subject got its name, because he studied the religion, he studied the value consensus, he studied the Arunta tribe where he studied about the religion, totemism and rules of sociological method, suicides, anomie, different concepts of society and different aspects were studied by Emile Durkheim. And his study of society revealed how social factors influence individual behavior, कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है दैट इज़ चेंज्ड और शेप्ड बाय द सोशल फैक्टर्स. वो ऐसा नहीं है कि वो साइकोलॉजी के बेसिस पे ही केवल चल रहा है, बट सोशल फैक्टर ऑल्सो हैव अ वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑन दैट. इन्होंने नॉर्म्स के ऊपर बात की, इन्होंने कल्चर के ऊपर बात की, इन्होंने गॉड के ऊपर बात की, सोसाइटी के ऊपर बात की. तो ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर आई हैव एवर रेड. इसके बाद मतलब दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव. इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑर्गेनिक सोसाइटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सारी बातें की हैं जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैटर में होनी चाहिए. सो दैट्स वाई ही इज़ कंसिडर्ड एज एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी. द नेक्स्ट थिंकर वॉज हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन इन हिज ओरिजिन. तो ऑलरेडी भैया रीज़न होनी चाहिए. जो आप पढ़ते हैं ना द वेरी फेमस लाइन विच इज़ कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, दिस वॉज गिवन बाय दिस पर्सन. डार्विन और इनके बीच में थोड़ा सा संघर्ष है कि किसने दिया था, बट इन्होंने कहा कि सोसाइटीज़ जो इवॉल्व हुई हैं, कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी का, एंड दैट हैपन्स थ्रू दी एक्चुअली दैट हैपन्स थ्रू टू थिंग्स. पहला इंटीग्रेशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो सोसाइटी है दैट इंटीग्रेट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट थिंग इनटू देम एंड देन इट डिफरेंशिएट. फिर ये फैलता है एंड टेक्स अ डिफिनिट शेप एंड फॉर्म्स अ सोसाइटी. तो इन्होंने बताया दैट सोसाइटी इज़ वेरी मच सिमिलर टू ऑर्गेनिज्म.
जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म की जैसी चीज़ें होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, यूनिट्स होते हैं अल्टीमेटली, वैसे ही सोसाइटी की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, एंड ऑल दोज यूनिट्स वर्क वेरी कोहेरेंटली एंड कोहेसिवली टू फॉर अ सोसाइटी. सो दिस वॉज गिवन बाय दिस पर्सन. तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था विच वॉज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी. विच वॉज वेरी मच फेमस. और उसने भी इस सब्जेक्ट को एक नया पर्सपेक्टिव दिया विच वॉज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो हम आगे पढ़ेंगे इन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी. द नेक्स्ट थिंकर विच शेप्ड सोशियोलॉजी वेरी मच वॉज मैक्स वेबर. मैक्स वेबर ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है. मैक्स वेबर हैव एरे ऑफ सब्जेक्ट्स. इन्होंने ब्यूरोक्रेसी दिया विच इज़ वेरी मच फेमस इन एक्चुअली यूपीएससी हैज़ ऑल्सो वेरी मच वेटेज ऑफ दिस. इन्होंने पावर की थ्योरी दी, इन्होंने क्लास अल्टीमेटली स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी दी, आइडियल टाइप्स की बात की कि व्हाट आर दी आइडियल टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें. मतलब हार्मेन्यूटिक्स पर्सपेक्टिव से थे ये, है ना. तो काफ़ी डिफरेंट इन्होंने कैपिटलिज्म पे बात की, बट कैपिटलिज्म कनेक्टेड टू रिलीजन. तो ही टॉक्ड अबाउट डिफरेंट थिंग विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो मैक्स वेबर ऑल्सो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वैल्यू की बात की, कल्चरल वैल्यू कैन शेप दी इकोनॉमिक सिस्टम, इन्होंने ये भी कहा. मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में, कंबाइनिंग इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म. जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा तो दे आर द टू थिंग्स विच इज़ कॉल्ड एज एस्केटिज्म एंड मिस्टिसिज्म, एंड दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू inner worldly asceticism, outer worldly asceticism, inner worldly mysticism and outer worldly mysticism. Now what are the Protestant, कि वो इतने अमीर क्यों हैं. तो इन्होंने बताया था कि that is in their culture, जिसकी वजह से वो अमीर हैं, जिसकी वजह से वो कैपिटलिस्ट हैं. बहुत सारी इन्होंने सोसाइटीज़ पे काम किया था, लाइक चाइना, इंडिया एंड डिफरेंट अदर सोसाइटीज़. और उसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था दैट प्रोटेस्टेंट अमीर या कैपिटलिस्ट इसलिए हैं क्योंकि वो उनके वैल्यू सिस्टम में है. वही उनका पाथ है, वर्क ही, काम ही उनका पाथ है जिससे वो लिबरेशन पा सकते हैं टू गो इनटू दी स्वर्ग या जो भी उनके सिस्टम में, उनके रिलीजन में है. एंड वो ये बोले थे कि एवरी वंस लाइफ इज़ ऑलरेडी डिसाइड, एवरी वंस फेथ इज़ प्री डिटरमाइंड, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है. बस वो आप किसी तरीके से अपने कर्मों को, क्योंकि वो समझते हैं, प्रोटेस्टेंट समझते हैं दैट उनके गॉड वांट डिमांड्स अ लाइफ फुल ऑफ गुड डीड्स, full of good deeds. So that is a very important thing. So from next lecture we will study about the different thinkers and the schools of sociology, perspective of sociology and basic concepts. I hope you liked this video. If you liked, guys, thank you so much. If you have any question, comment down below. Don't forget to subscribe. Just social by Ujjwal. My name is Ujjwal Pandey. Thank you so much. Bye bye.